Hello, and I welcome you all on the Prince Civil Services YouTube channel. My name is Chitranshu Pandey, and in this session, we are going to discuss the internal security section of recently held UPSC Mains Examination 2023. As you know, the UPSC has finally concluded their mains examination, and internal security, which belongs to GS paper 3 of UPSC Mains Examination, plays always an important role in this paper. This year, 4 questions have been asked from this section. In that four question, they belong to 60 marks, 2 questions of 10 marks, and 2 questions of 20 marks. In these questions, one question was very easy because that directly asked about the internal security challenges of India, which is one of the first chapter we study in this particular section, as well as one question which was related to you can say technology section of GS3, that was related to UAVs. That particular question you can say a bit tough, or you can say moderate level, and the remaining 2 questions of internal security belong to average section. So in this particular session, we will try to find out the answer, or you can say the framework of the answers which we can write about these questions of internal security. We will also try to find out the key points which should be given in your answer to get the matter marks. So let's start this session with our first question. But one thing to remember, that if we try to solve any UPSC mains question, you always remember that thing, that your answer should be well structured. So in this particular session, we will find out all the answers in 3 parts. The first part is introduction, definitely, in which you will use around 3 to 4 lines or 50 to 60 words, in which you will try to discuss, or you will try to uh, represent a base, or you can say a theme of your answer, which should be related to the main theme of question. Then we will try to write the main body, in which you will directly give to the point answer of that question, and then we will try to conclude that answer with some conclusion or way forward or suggestions. So this is going to be our structure to deal with these 4 questions. So let's start this session with our first question of the recently held mains examination. And that question of internal security was, what are the internal security challenges being faced by India? So बहुत ही डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के क्या क्या समस्याएं या चैलेंजेस या चुनौतियां हैं. Give out the role of central intelligence and investigative agencies to counter or tackle such threats. तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारत की केंद्रीय सुरक्षा बल या सुरक्षा एजेंसियां हैं, जैसे सीबीआई की आप बात कर सकते हैं, इसी में आप सीआरपीएफ की बात कर सकते हैं, तो इनका क्या रोल है इन चुनौतियों का समाधान करने में. तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको इजीली यहाँ पर 20 मार्क्स मिल सकते हैं. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. वी ऑल नो दैट यूपीएससी डू नॉट गिव 100% marks in any question, but still you can maximize your score by writing a good answer because it's just related to the introduction section of this internal security. So in this answer, first of all we will write an introduction, और इस आंसर में आपका जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ही बेस्ड होना चाहिए. एज आई सेड अर्लियर कि आपका इंट्रोडक्शन हमेशा क्वेश्चन की मेन थीम पर बेस्ड होगा, एंड सिंस द मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन of this question is the internal security challenges of India, then your introduction should also be about it. So यहाँ पर आप कुछ definition दे सकते हैं. You can give the 4 different internal security challenges given by चाणक्य, as you if you know, और आप उनको डिस्कस कर सकते हैं. आप थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में बता सकते हैं, but always remember this should be limited to around 3 to 4 lines. तो यहाँ से आप इस तरह से इस क्वेश्चन की इसका स्टार्ट कर सकते हैं. Then we will come to the main body. मेन बॉडी विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. पहला पार्ट जो कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है, डिफरेंट चैलेंजेस आपको बताने हैं, एंड सेकंड पार्ट रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बतानी है. तो यहाँ पर मेन बॉडी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. पहले हम बात करेंगे आंसर में अपने इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस. ऑलवेज रिमेंबर कि इफ यू आर गोइंग टू गिव अ पॉइंट, then this point should be supported by few examples or few recent events. Okay, internal security is a bit dynamic topic. There are several changes occurs in every year. Several summits are also done. So you should always remember that you should have some current outgoings with your answer to support that particular theory or point you are giving in the answer. So here we will provide that terrorism is one of the first challenge we see in the internal security. इसके बाद आप नक्सलिज्म की बात कर सकते हैं, विच इज वन ऑफ द इंडियाज मेजर चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. यहाँ पर आप 2010 में रिसेंटली जो अटैक हुआ छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा का, उसको बेस बना सकते हैं एग्जाम्पल के लिए.
और इसके बारे में आप इस कथन को बता सकते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंसर्जेंसी इन जम्मू कश्मीर, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद को लेकर के आतंकवाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, वो भी हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए किस तरह चुनौती पेश कर रही हैं, आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। और रिसेंटली पुलवामा में जो अटैक हुआ 2019 के आसपास, जिसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली, उसका एग्जाम्पल देकर के इस पॉइंट को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये भी एक मेजर चैलेंज है। जैसा कि आप देख रहे हैं रिसेंटली मणिपुर में अभी रिसेंटली एक क्राइसिस हुआ, इसके पहले नागालैंड को लेकर के बात चल रही थी, तो अरुणाचल प्रदेश की चर्चा चल रही थी। तो यहाँ पर आप इन सभी एग्जाम्पल्स को दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कैसे चैलेंज हो सकता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनल टेंशंस। हर साल लगभग हम कभी ना कभी देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के देश में दंगे हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का क्या है, एक मेजर चैलेंज है। और इसमें आप 2002 के गुजरात राइट्स की बात कर सकते हो, मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर सकते हो 2013 में जो हुए, तो इनका एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं। देन साइबर थ्रेट्स, जो ये नया चैलेंज निकलकर सामने आ रहा है, जो लगातार वर्ल्ड को या हर एक वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती दे रहा है, तो इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है और यहाँ पर भी कई सारे ऐसे साइबर अटैक्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2020 के आसपास इंडिया पावर ग्रिड पर एक साइबर अटैक हुआ था, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। देन रेडिकलाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो कि जो रेडिकलाइजेशन है 2006 में जैसे मालेगांव बॉम्बिंग हुआ था, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि रेडिकलाइजेशन कैसे यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है। और इसके बाद लास्ट में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या इन्फिल्ट्रेशन है, उनकी बात कर सकते हो, कैसे बाहर बॉर्डर के आसपास के एरियाज जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, और कैसे लोग फोर्सफुली या धोखे से बॉर्डर को क्रॉस कर जा रहे हैं और हमारे यहाँ चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आप डेफिनेटली त्रिपुरा और बांग्लादेश बॉर्डर को दे सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास कई सारे पॉइंट्स होंगे, अगर आपने एक चीज़ को ध्यान दिया होगा तो इसमें ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स हैं, टेररिज्म हो, नक्सलिज्म हो, इंसर्जेंसी इन जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट हो, या फिर कम्युनल टेंशन हो, साइबर थ्रेट्स हो, ये सभी इंटरनल सिक्योरिटी के एक चैप्टर्स हैं। अगर आपने इसको कहीं से पढ़ा होगा तो आपको सिर्फ उन चैप्टर्स का नाम बताना है और उसको किसी एग्जाम्पल से, किसी रिसेंट इवेंट से सपोर्ट करना है, और इतना करते ही आपका मेन बॉडी का आधा काम तो हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर हम डिस्कस करेंगे मेन बॉडी में कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या रोल है। ये थोड़ा सा आपका नया पार्ट होगा, जहां पर आपको थोड़ी चीजें रिसेंट से जो भी चीजें हुई हैं उन पर आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे यहाँ इस तरह की कौन कौन सी एजेंसीज हैं। इनमें आपका नाम आएगा किसका, आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। यहाँ पर रॉ का नाम आता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नाम आएगा। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का नाम आएगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का नाम आएगा। इसके बाद सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम आएगा। फिर स्टेट पुलिस होंगी, जो स्पेशल फोर्सेज होंगी, उनका नाम आएगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी का नाम आएगा। एंड एट लास्ट कोऑपरेशन विद द इंटरनेशनल एजेंसीज का नाम आएगा। तो इतने पार्ट्स में इतनी एजेंसीज के बारे में आपको बताना होगा इस आंसर, और इन सभी आंसर्स के, इन सभी बॉडीज के नाम के साथ साथ आपको यही बताना होगा कि रिसेंटली कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसी घटना जहां पर इन एजेंसीज ने ऐसे चैलेंजेस को टैकल किया है सक्सेसफुली। तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम आईबी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसको असफल करने में आईबी की बहुत बड़ा रोल था। ऑल्दो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फेलियर ऑफ आईबी, बट स्टिल पार्लियामेंट के बाहर ही इनको रोक लिया गया फाइनली। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आईबी ने प्ले किया था। सिमिलरली अगर आप रॉ का नाम लेंगे तो रॉ के बारे में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉर्डर के अक्रॉस जो भी थ्रेट्स होते हैं, चाहे वो फोर्सफुली लोग बॉर्डर क्रॉस कर जा रहे हैं उसकी बात हो रही हो, या जो आप देख रहे हैं टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं वगैरह वगैरह, इन सभी में कहीं ना कहीं रॉ और एनआईए जैसी एजेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं और वो ऐसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में बहुत सक्सेसफुली रोल प्ले कर रही हैं। तो आप इनका एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। तो हर एक का एग्जाम्पल मैंने सामने लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंट्रल स्पेशल फोर्सेस की बात की जाएगी तो अब रिसेंटली 2008 का जो मुंबई हमला हुआ था, वहां पर एनएसजी ने क्या रोल प्ले किया था वो किसी छिपा नहीं है। तो ऐसे में इन सभी एग्जाम्पल्स को आप साथ साथ देते हुए चलेंगे तो आपका हमेशा याद रखिए पॉइंट जब भी आप देंगे वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे होंगे उन आंसर से जहां पर इनका नाम तो लिखा गया है और रिसेंटली कोई इवेंट से इसको बेस प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से इस मेन बॉडी को हम फिनिश करेंगे। अब इसके बाद हमें कंक्लूड करना होगा। सो इन कंक्लूजन यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप एक सिंपल सा कंक्लूजन लिख दें, लेकिन उसके चलते आपको कहीं ना कहीं मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। सो आप क्या करें, आप हमेशा वे फॉरवर्ड दें ऐसे टॉपिक्स में,
क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस को अगर आपको समाप्त करना है तो इसके लिए कोई समाधान चाहिए। तो एज एन ऑफिसर, एज अ फ्यूचर ऑफिसर, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड सम of the, you can say, conclusion with some way forward to how to tackle these threats in the future। तो यहाँ पर अगर आप कंक्लूजन लिखेंगे तो आप ये बताएंगे कि कहीं ना कहीं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं इन एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर और होंगी तो डेफिनेटली ऐसे थ्रेट्स को हम और ज्यादा न्यूट्रलाइज कर पाएंगे और इस तरह के थ्रेट्स फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सजेस्टिव वे में पहुंच जाएंगे और इस आंसर को कंक्लूड कर देंगे। So this was the first question of internal security which was asked in the last previous examination, जहां पर आपने साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनके जो एजेंसीज इन्वॉल्व है उनके बारे में आपने लिखा। तो अगर इस तरह का आंसर आप लिखते हैं डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू परफेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे टेररिज्म से रिलेटेड है, जहां पर आपसे पूछा गया है कि द गिव आउट द मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग in India and the efforts being made to the curtail these sources। टेरर फंडिंग अगर आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें होती हैं वो चैप्टर जो आपका है जनरल सिक्योरिटी का उसी से इन्वॉल्व है। थोड़ा बहुत टेस्ट टेररिज्म का भी से मिला हुआ है और टेरर फंडिंग के ऊपर यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली अभी जो नोटबंदी जैसी घटनाएं हुई देश में, जो लागू किए गए प्रावधान, तो वहां पर कहीं ना कहीं उसका एक मेजर रीजन ये टेरर फंडिंग था और यूपीएससी ने इस साल उसी पर एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है कि इसके क्या क्या सोर्सेज हैं इंडिया में और ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स हैं जिसके तहत इसको खत्म करने का प्रयास किया गया। इन द लाइट ऑफ दिस ऑल्सो डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नो मनी फॉर टेरर NMPT कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड एट न्यू दिल्ली इन नवंबर 2022। तो आप देख सकते हैं कि लगभग आज से, अगर आप एग्जाम टाइम से बात की जाए तो लगभग आज से 10 महीने पहले जो रिसेंटली अभी एक समिट या कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। और ये समिट क्यों हुई थी? नो मनी फॉर टेरर, मतलब कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग को लेकर के ही समिट हुई थी। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था कि दिस सेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इज अ डायनेमिक सेक्शन। आपको हर समय रिसेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं, समिट्स हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही उनसे आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ये इसका दो बेनिफिट है। पहला, अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, नो डाउट बेनिफिट है आपके पास कि आप इससे अवेयर हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये बेनिफिट है कि अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं भी आता है तो यू कैन गिव दैट एग्जांपल इन दैट क्वेश्चन आंसर, और इसके चलते आपका आंसर औरों से और बेहतर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मेन थीम इस क्वेश्चन की टेरर फंडिंग है, आप देख सकते हैं। तो आप इसी टेरर फंडिंग को डिफाइन करिए इंट्रोडक्शन में। ये बताइए टेरर फंडिंग क्या है, या टेररिज्म से शुरू करते हुए टेररिज्म क्या है, टेरर फंडिंग क्या है और कैसे ये देश को चुनौती दे रहे हैं। इस पूरी बात को आपको यहाँ पर लगभग 3 से 5 लाइन में खत्म करना होगा, क्योंकि हमारे पास बताने को अभी बहुत कुछ है। इस क्वेश्चन में 3 अलग अलग चीजें पूछी गई है। पहली, टेरर फंडिंग के सोर्सेज, टेरर फंडिंग को कैसे काउंटर करना किया गया है, और थर्ड थिंग वो जो एम एंड ऑब्जेक्टिव, इनफैक्ट 4 चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो यू हैव शॉर्ट वर्ड लिमिट, तो ऐसे में थोड़ा सा इसको आपको कंसाइज रखना पड़ेगा। अब मेन बॉडी की अगर बात किया तो आप सबसे पहले बात करेंगे मेजर सोर्सेज क्या है। याद रखिए यहाँ पर जो सोर्सेस हम बताएंगे उससे रिलेटेड कोई रिसेंट इवेंट अगर आपके पास है तो आपका आंसर और बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पहले शुरू करता हूँ हवाला ट्रांजेक्शन। हवाला के बारे में आपने सुन रखा है कि ये क्या है। अगर इसके बारे में आप बता रहे हैं ये मेजर सोर्स है तो आपको ये बताना पड़ेगा 1993 जो बॉम्बे ब्लास्टिंग हुई थी या बम फटे थे वहां पर किस तरह से इस हवाला ट्रांजेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद काउंटरफेट करेंसी जो है कि कैसे फेक करेंसी यहाँ पर पब्लिश की जा रही है, प्रिंट की जा रही है हमारे एनिमी कंट्रीज के द्वारा या फिर टेररिस्ट के द्वारा, तो ये भी एक मेजर सोर्स है उनके लिए। डोनेशन जो उनको फेक मिल रहे हैं फॉर इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ यू कैन से एनजीओ के वगैरह, तो इनमें से जो फंडिंग मिल रही है उसको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद एक्सटॉर्शन, कहीं ना कहीं लोगों से पैसा वसूलना वगैरह, नक्सलीज जो कर रहे हैं आजकल। इसके बाद नारकोटिक्स ट्रेड जो होती है, जो ट्रेडिंग, जो स्मगलिंग हो रही ड्रग्स वगैरह की, तो वो भी एक कहीं ना कहीं मेजर सोर्स है इन टेररिस्ट ग्रुप के लिए फंडिंग का। इसके बाद आर्म्स स्मगलिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए और टेररिस्ट के लिए कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम है। इसके बाद किडनैपिंग्स फॉर रैंसम, तो बड़ी बड़ी किडनैपिंग, छोटी मोटी नहीं लेकिन हाँ बड़ी बड़ी किडनैपिंग जो होती है या कहीं प्लेन हाईजैक हो जाता है, वो सभी भी कहीं ना कहीं क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ग्रुप के लिए। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइबर क्राइम।
ये एक लेटेस्ट तरीका है पैसे लेने का। अब आपको पता होगा रिसेंटली जो भी एक वानाक्राई वायरस आया था और कैसे रैंसम की डिमांड की गई थी इस वायरस के द्वारा, तो ये भी कहीं ना कहीं साइबर अटैक जो हैं रिलेटेड रहते हैं टेररिस्ट ग्रुप से और उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनकर सामने आए हैं। तो आप इतने सोर्सेज को कहीं ना कहीं हर एक सोर्स को 1 लाइन में डिफाइन करेंगे तो 7 से 8 लाइन में आपका काम हो जाएगा और आप लगभग सभी सोर्सेज को विद एग्जाम्पल डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारा आधा काम तो हो गया इस क्वेश्चन का, बाकी आधा काम देखते हैं कि एफर्ट्स क्या क्या किए गए हैं। देखिए याद रखिए उस समिट का नाम जरूर लिया गया है बट स्टिल यू हैव टू फोकस ऑन द सोर्सेज एंड एफर्ट्स अबाउट टेरर फंडिंग। तो उस समिट को आपको बाद में बताना है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन फोकस यहाँ पर टेरर फंडिंग पर है। इसके बाद सोर्सेज की अगर हम एफर्ट्स की बात करें तो हमने क्या किया है, स्ट्रेंथिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल हमने एक यूनिट सेटअप की थी, कौन सी, इंडियाज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कहीं ना कहीं इन सभी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है। तो ये एक इंडिया का एफर्ट अच्छा है। हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू की थी जहां पर हम पूरे वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल FATF का नाम आता है। FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, 1989 में बनी थी ये। और इसका मेन काम ही क्या है, इसका मेन काम है टेरर फंडिंग को रोकना या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे हैं सो दैट जो कि वर्ल्ड लेवल पर टेररिज्म फैला हुआ है तो हमें कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी और इससे हम इसको काउंटर कर सकते हैं। क्रैकडाउन ऑफ हवाला, ताकि हवाला जो चीज़ें हो रही हैं ऐसी घटनाएं उनको रोक सकें हम। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी को हम बढ़िया कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा इससे क्या होगा, अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे नो डाउट कहीं ना कहीं जो स्मगलिंग जैसी घटनाएं हैं, इन्फ्लिट्रेशन में ऐसी घटनाएं हैं, ये सभी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसके बाद पब्लिक अवेयरनेस, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस की जरूरी है कि अगर साइबर अटैक होता है या ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो यहाँ पर पब्लिक को अवेयर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ना कहीं क्या हो, रुक जाए, हम इसके लिए रेगुलर चेकअप्स कर रहे हैं, रेगुलर रेट्स मार रहे हैं। अब इसके अलावा इंटरनेशनल कॉपरेशन, जहाँ पर हम पूरे वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कर रहे हैं, कॉपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो रिसेंटली क्या किया है, गवर्नमेंट ने उठाया है और इसके तहत हम क्या कर रहे हैं, इन सोर्सेस को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद जो आपसे मेन सेकंड पार्ट किया गया था क्वेश्चन का, वहां पर क्या है, नो मनी फॉर टेरर। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बेसिकली अगर आपको नहीं भी पता है, इनकेस मैं बेस करता हूँ कि आपको नहीं पता है इसके बारे में, फिर भी आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि नो मनी फॉर टेरर का एम क्या होगा, ऑब्वियसली टेरर फंडिंग को रोकना। तो यहाँ पर एम में आप क्या डाल सकते हो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा, वो कई सारे देशों के प्रतिनिधि आकर मिल रहे हैं और मेन एम क्या है, नो मनी फॉर टेरर। तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को डिस्कस करना है कि टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स, सभी लोग विश्व के नेता क्या हूँ, साथ आए, पॉलिसी मेकर्स को एक साथ लाना है, डिस्कस एंड स्ट्रेटजाइज अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग। तो इसको जनरलाइज वे में भी आप लिख सकते हो अगर नहीं भी आता है तो भी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे क्या होगा, तो इनहांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या करना है, बढ़ाना है हमको। इसके साथ साथ स्ट्रेंथन लीगल फ्रेमवर्क्स, जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं अगेंस्ट काउंटर टेरर फंडिंग, उसको और क्या करना है, मजबूत करना है। साथ ही साथ शोकेस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, डेवलप यूनिफाइड फ्रंट। तो इन सभी चीजों को अगर हम करेंगे, यही इसके मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आप बहुत जनरल चीज है, अगर कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं पता है तो ये आधी ज्यादा बात उसने बता दी है, कॉन्फ्रेंस का नाम बता दिया है, कब हुई है ये बता दिया है, कहाँ हुई है ये बता दिया है। तो फैक्चुअली कुछ आपसे नहीं पूछा है उसने, कोई एक्सपेक्ट नहीं किया है, बस एक जनरलाइज चीज पूछी क्या एम और ऑब्जेक्टिव है, विच इज वेरी इजी टू टेल कि अगर नो मनी ऑफ टेरर इसका नाम ही है तो डेफिनेटली टेरर फंडिंग को रोकना ही उसका ऑब्जेक्टिव होगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना वो भी उसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस तरह से आप इसके बारे में बता सकते हैं। एंड एट द एंड यू विल कंक्लूड दैट आंसर, और यू कैन से एंड दिस आंसर विद सम वे फॉरवर्ड, जहां पर आप कुछ सजेशंस देंगे टू काउंटर टेरर फंडिंग। यहाँ पर आप कई तरह की चीजें बताते हैं कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी अच्छी कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को वैल्यू दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आप, ताकि ये फेक करेंसी ऐसी घटनाएं ना हो, जो आपने बता सकते हो कि जो आप नोटबंदी ऐसी घटनाएं वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही हैं। इन सभी की चर्चा करते हुए कुछ सजेस्टिव वे में कुछ सजेशन देते हुए आपको आंसर को फिनिश करना है। तो इस तरह का आंसर अगर आप लिखते हैं डेफिनेटली इट विल गोइंग टू बी अ परफेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आउट ऑफ दीज 4 क्वेश्चन चैप्टर्स 4 अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। पहला तो बेसिक से आया है, दूसरा आपका मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फंडिंग से आया है, तीसरा इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर से आया है, टेररिज्म से आया है, और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा है यूएवीज वाला, जो कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट से आया है, बॉर्डर मैनेजमेंट से आया है।
तो यहाँ पर 4 अलग अलग चैप्टर से 4 सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या है, bring the heart and minds in terrorism affected areas is an essential step to restoring the trust of the population। मतलब जो टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर लो, आप अरुणाचल की बात कर लो, ऐसे एरियाज में कह रहा है कि जो लोगों का दिल और दिमाग, हार्ट एंड माइंड्स, इसको जीतना ही एक एसेंशियल स्टेप है, एक जरूरी कदम है टू रीस्टोर द ऑर्डर इन दैट एरिया इन द पॉपुलेशन। तो यहां पर इसकी उपयोगिता बताई गई। डिस्कस द मेजर्स adopted by government in this respect as part of the conflict resolution in the जम्मू कश्मीर। तो कुल मिला क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको उन गवर्नमेंट एफर्ट्स को बताना है जो रिसेंटली हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं टू विन द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। होगी तो डायरेक्टली पूछा गया है इन जम्मू एंड कश्मीर, तो और कहीं क्या नहीं बताना है। तो आपको सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या क्या है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पूछा गया, सिंपल सा यही पूछा गया। तो अब हम आंसर को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना है पहले आपको। इंट्रोडक्शन की क्वेश्चन की मेन थीम क्या है, ऑब्वियसली कि लोगों का दिल दिमाग जीतना, वो मेन थीम नहीं है, आप ऐसे मत लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन की मेन थीम है इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो आप जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसी के बारे में बताइए, कुछ एक लेटेस्ट घटनाएं, फॉर एग्जाम्पल पुलवामा अटैक के बारे में बताइए, कुछ नए ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहे हैं बताइए, आर्टिकल 370 के बारे में डिस्कस करिए। इसको हल्का सा डिस्कस करते हुए इंट्रोडक्शन आपको लिख देना है। इसके बाद जब आप मेन बॉडी में पहुंचोगे तो आप बताओगे कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नए नए इनिशिएटिव ला रही है हर एक फील्ड में। सिंस यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नहीं पूछा गया है, तो आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक हर एक फील्ड को अलग अलग रख के बताना है। पॉलिटिकली वो क्या करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकली आउटरीच की बात करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो है देश देश का एक पार्ट बन गया कश्मीर। इसके साथ ही साथ क्या स्पेशल जो राइट था वो हट गया उसका वहां से। इसके अलावा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कंडक्टिंग इलेक्शंस एंड अलाउइंग लोकल पार्टीज टू पार्टिसिपेट एंड एम्पावर द पीपल। लोकल पार्टीज को वैल्यू दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है, लोगों का दिल दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं जीतने का प्रयास किया जा रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप जाओगे तो क्या होगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें हैं वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ क्या होगा, लोगों को एम्पावर करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, स्कीम चलाई जा रही हैं। इसके अलावा आप क्या देखते हो कि ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी के लिए अन्य चीजें बनाई जा रही है, टावर प्रोजेक्ट आया था वहां पर, रोड का प्रोजेक्ट आया था, उनके बारे में बताइए आप। फिर आप बात करेंगे किसका, यूथ इंगेजमेंट एंड एजुकेशन, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे कुछ स्कीम्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट उम्मीद का नाम आप ले सकते हैं, प्रोजेक्ट हिमायत का नाम ले सकते हैं। उम्मीद क्या है, स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ, हिमायत क्या है, स्किल डेवलपमेंट फॉर वुमेन। तो ऐसी चीजों को आप एग्जाम्पल देते हुए बताना है आपको। चौथा क्या बताया, सिक्योरिटी मेजर्स, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि बाकी तीन तो ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स में क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए क्या किया हमने जम्मू कश्मीर में। तो वहां पर आप सकते हो क्या कर रहे हैं कि हम मोर ह्यूमन अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं। ह्यूमन अप्रोच क्या है कि बहुत ज़्यादा फोर्स को तो डिप्लॉय करना पड़ेगा, मजबूरी हमारी, लेकिन फोर्सेस को भी हम बाउंड करके रख रहे हैं कि वो ह्यूमन अप्रोच अपनाएं। जो भी बेगुनाह लोग हैं उनकी कोई जान को क्षति ना हो, कोई जान माल को क्षति ना हो, और सिर्फ टेररिस्ट को ही कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़े। तो ये चीज़ें हमने अडॉप्ट करनी शुरू की। तो इन चीज़ों को जब आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ हम कई सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया क्या, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इससे क्या किया हमने, लोगों को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, क्योंकि वो अकाउंट्स खोले अपने अपने और उनके पास भी अकाउंट्स का एक्सेस हो। और इसेंशियल जो भी कमोडिटीज है उनको हम क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं लोगों तक। इसके साथ साथ डायलॉग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है कि हम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल रहे हैं, डील कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना भी नॉन वायलेंट तरीके से चीज़ों का समाधान हो सके वो किया जा सके। तो हम उसका प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करोगे तो पर्टिकुलर हम तो इंडिया में आप जानते हैं डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं। तो ऐसे में हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो कल्चर है उसको प्रिजर्व रखने के कई तरह के समिट्स करवा रहे हैं, कई तरह के फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोकल फेस्टिवल्स को। तो ये एक नई चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके साथ मीडिया और इन्फॉर्मेशन की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसी भी पर्टिकुलर कोई कह सकते हो आप, ऐसा कोई रीजन इंडिया का हो या देश का हो जहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो अगर मीडिया उसके पक्ष में
पॉजिटिवली बोलती है डेफिनेटली, तो लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं अपनेपन की भावना आती है। तो यहाँ पर मीडिया भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से इसको अप्रोच कर रही है ताकि लोगों का दिल दिमाग जीत सके। तो इन सभी सेक्शंस को आप अलग अलग बताइए। जब आप अलग अलग बताएंगे तो कहीं ना कहीं इससे आप सभी एरिया, सभी डायमेंशन को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और इसके बाद आप इस कंक्लूजन को कंक्लूड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को, विद सम इनिशिएटिव, सम न्यू अप्रोच। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप बात कर सकते हैं 3D अप्रोच को, कि विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड तो ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम का समाधान के लिए आप 3D अप्रोच को अपना सकते हैं। 3D क्या है? अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो 3D आपका एक तो डिफेंस वाली चीज हो गई कि आप सेना को डिप्लॉय करो ताकि वहां सिक्योरिटी मजबूत रहे, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज आपकी क्या हो जाएगी? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप वर्ल्ड ऑर्डर को ऐसे रखो कि लोग कश्मीर के बारे में जब सोचें तो वो आपके बारे में सोचें, वो उसे इंडिया का पार्ट कंसिडर करें, ना कि उसके अगेंस्ट बोले। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो गवर्नमेंट हमारे साथ है प्रेजेंट टाइम में, उसके इस पक्ष में एफर्ट काफी अच्छे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखते हैं तो मेजर कंट्रीज जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के पक्ष में है या फिर न्यूट्रल है। तुर्की वगैरह को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं कोई भी पाकिस्तान के पक्ष में इसमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ये भी डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। और इसके बाद आप देखते हैं क्या 3D में कि डिप्लोमेसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों का अच्छा हो। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ों का? कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, फॉर एग्जांपल जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जनता तक पहुँचे। तो ये पॉलिसी को अगर आप अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा अच्छे से समाधान कर पाएंगे इस चुनौतियों का। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जहां पर आपको पूछा गया है थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस टेक्नोलॉजी सेक्शन के बीच का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपने डायरेक्टली यूएवीज के बारे में पूछा गया है। अब रिसेंटली आप देखते हैं कि जो स्मगलिंग वाली चीजें हैं बॉर्डर पर, वहां पर चूंकि हमें बीएसएफ बहुत तैनात है, फोर्सेस तैनात है, तो ऐसे में उन लोगों के पास काफी चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब एक नया तरीका ये है कि वो लोग यूएवीज यानी ड्रोन जैसी चीजों के साथ क्या कर रहे हैं, उस स्मगलिंग वाली चीज़ों को डन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉर्डर के इस तरफ से ड्रोन प्ले उड़ा रहा है और उसके थ्रू कोई सामान बॉर्डर के दूसरी तरफ पहुंचा रहा है। तो ऐसे में सेना पूरे बॉर्डर नजर नहीं रख सकती, तो ऐसे में यूएवी से एक मेजर चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं। उसी पर क्वेश्चन क्या है आपका कि द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बाई अवर एडवर्सरीज अक्रॉस द बॉर्डर टू फेरी arms and ammunition, drugs, etc. is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle that challenge or threat. तो कुल मिलाकर ये कहना है कि यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे ड्रोन वगैरह हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं हमारी स्मगलिंग जैसी, उनके लिए एक मेजर चैलेंज बनकर सामने आया है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत बताने हैं मेजर्स जो लिया जा सकते हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आप बात करेंगे इंट्रोडक्शन में पहले किसके बारे में? डेफिनेटली आप बात करेंगे यूएवी के बारे में। यूएवी क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या है, इसके बाद बॉर्डर चैलेंजेस से रिलेटेड क्या क्या है, रिसेंटली ऐसा कोई घटना अगर हुई हो तो आप उसे बता सकते हैं कि वो क्या है, और इसके बारे में आप बताएंगे। मेन बॉडी में जब आप पहुंचेंगे तो आप बताएंगे मेजर्स टू टैकल द थ्रेट, कि इन थ्रेट को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। इसमें क्या बताएंगे? सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, कि जैसे इंडिया के बीएसएफ है वो इस बॉर्डर पे क्या कर सकती है, सर्विलांस बढ़ा सकती है, मॉनिटरिंग बढ़ा सकती है। हालांकि एक बहुत बेसिक सजेशन हो गया। इसके बाद जैमिंग एंड स्पूफिंग काउंटर मेजर्स, कि अब चूंकि यूएवीज क्या है, टेक्नोलॉजिकल चीज़ है, टेक्नोलॉजी की चीज़ है, वहाँ पर कम्युनिटी नेटवर्क्स होंगे, तो ऐसे में अगर बॉर्डर एरियाज में कंप्लीटली क्या कर दिया जाए, इनको जैम कर दिया जाए या फिर स्पूफिंग कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि यूएवी एक्सेस करना उनके लिए ईजी नहीं होगा और हम इनको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ था जहां पर ड्रोनिक्स नाम की एक डेवलपमेंट हुई थी। ड्रोनिक्स का काम क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है जो ड्रोन को उड़ने से रोकता है, तो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बॉर्डर एरियाज में। इसके बाद लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, यहाँ पर क्या है कि इनसे रिलेटेड कोई रेगुलेशन नहीं है, हमारे पास कोई लेजिस्लेटिव नहीं है, तो ऐसे में कोई लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा कि इसको लेकर क्या क्राइम है, जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर कोई ड्रोन उड़ा रहा है तो उसको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, ये जरूरी है हमारे लिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर सकते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी की चीज़ है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है इंडिया के लिए, और ऐसे में हम यहाँ पर ये जो बॉर्डर इशूज़ हैं इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, जैसे मैंने बात बताया आपको किसके बारे में, ड्रोनिक्स के बारे में, ये कर सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर फेंसिंग एंड बैरियर्स को बढ़ा सकते हैं, जो वो ऐसे एरिया जहाँ पर ये ज़्यादा होती है वहाँ पर हम बॉर्डर फेंसिंग को और ऊंचा कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी जो फोर्सेज हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो इन चीज़ों से लड़ने में सफल हों। इसके पब्लिक अवेयरनेस,
पब्लिक अवेयरनेस में बताया मैंने आपको, कोई भी ऐसा प्लेस, पब्लिक एरिया जहाँ पर ड्रोन उड़ रहे हैं वहाँ पर उसको रेगुलेट किया जाए। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट बात आते हैं। डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ हैं, वो इस एंटी ड्रोन चीज़ों पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और ऐसी टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद लीगल पेनल्टीज, कोई ऐसा करता वो पाया गया तो उसके साथ क्या क्या पेनल्टीज लगेगी, क्या क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी, इस बारे में आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप मेन मॉड्यूल क्या करेंगे, कॉन्क्लूड कर देंगे। और इसके बाद हम आते हैं हमने क्वेश्चन के एंड में जहाँ पे कंक्लूजन करेंगे। वहाँ पर हम बताएंगे कि एक मल्टी पेज अप्रोच चाहिए हमें यहाँ पर, जो हर एक चीज़ से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल उसमें हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल हो, उसमें हमारा डीआरडीओ भी शामिल हो, गवर्नमेंट भी शामिल हो, पब्लिक भी शामिल हो, और ये सभी मिलकर जो अप्रोच लेंगे उसी के थ्रू क्या होगा, इन थ्रेट्स को काउंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं और अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो आई थिंक दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।